in this video I am going to discuss with you a new design pattern, that is a decorator design pattern. First thing, why we need it? We need some classes, the base classes with some additional functionalities. We do not want to make the modification into the base, but we want additional functionality. For that, we are going to make the use of decorated or decorator design pattern. Let's start with the real world scenario, right? As this slide says, I can take you as the one of the example, you being a human being, wearing different clothes during the different sessions. Or let's say, let's read this out. In case there is cold, then what you do? You wear a sweater. In case it is colder, then you go for a jacket on the top of the sweater, right? In case the cold is more, then you wear another jacket, right? And in that way, you are keeping on adding the functionalities. In that way, you are keeping the modification in you, right? So, can I say, wearing the clothes, wearing the jacket, wearing the sweater does not make any change in you. It is just giving you the additional feature that it is saving you from the cold, right? So, this is a very simple example. This is a very real world scenario. Can be observed with the help of this very simple example. This is the person initially, the person wearing some sweater, person wearing a jacket. The person is same. There is no modification into the human being, right? Now, let's go for the basic of the design pattern, right? This pattern allows a user to add new functionality to an existing object without altering its structure. Initially what we were talking about the real world scenario. हम लोग बात कर रहे थे real world scenario की, जिसमें हमने क्या करा, human being की बात करी, wearing sweater, wearing jacket. अगर हमें यही functionality कहाँ लेके आनी है, प्रोग्रामिंग में, राइट? तो हम क्या करेंगे? अरे हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, राइट? तो अगर हम डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न की बात करते हैं तो हमें इसमें क्या है, दिस पैटर्न अलाउ अ यूजर टू ऐड न्यू फंक्शनलिटी टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. मतलब एक हमारे पास क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमें क्या करना है, नई फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है, राइट? तो हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर द डेकोरेटेड, राइट? एंड दिस टाइप ऑफ डिजाइन पैटर्न कम्स अंडर द स्ट्रक्चरल. We are already aware of there are three types of design pattern: creational, structural and behavioral. Some example of creational are singleton, and this one is the example of the structural, right? Right. Why we call it as a structure? Reason being, it is not making the modification into the existing object, existing class, right? So it is providing the additional structure. So it is wrapping, or it is providing the wrapper to the existing class, right? This pattern creates a decorator class which wraps the original class and provides additional functionality, keeping class method signature intact. Signature means the name of the method, the return type of the method and the parameter list of the method. It keep that same, right? A little bit more. Decorate is a structural design pattern that let you attach new behavior to objects by placing these objects inside the special wrapper object that contains the behavior, right? If I go for the very simple example in Java, so we are with the wrapper classes. For every data type, we are with the class, right? For example, if I says I have learned the data type, primitive data type, that is int. Parallel to this, we are with the class that is integer, right? And most of us are aware of the function that is parseInt. What its job is? Take something, do something and return the integer. What it takes? It takes a string. In case it can convert it to a number, it converts it, otherwise it throws an exception. And then in case it converts it to a number, then it returns that, right? And on the same pattern, we are with the parse float, which take an integer, convert it to a float if it can and return to the calling one, right? Now let's go for the real project scenario, right? We are talking about the real world scenario or real world computer project scenario. Imagine
let's say in the beginning you have to work on a notification system. You have to create a library for providing the notification, right? So what you are going to do, you will provide the basic functionalities, right, which is required for providing a notification. That means you will go for the constructor, sorry, you will create a class having some fields, having a constructor and a single send method. That's all that is the prerequisite to create a notification library. A single class having some feature, having a constructor and a send method. What the job of the constructor is to initialize all its prerequisites, and what the job of the send method is to take the string, of course, as a parameter list, and then to connect that string, that message with the notification mails and do the job. What the job is? Send the message to the required emails. That's all you are going to do. So this is the initial, very first. This can be done like this. This is the notification notifier, and this is the application that is making the use of this. And this is the method, right? That the name of the method is send, and alert is a message that your application is going to send. At some point, that means अगर आपने एक बार ये बना दिया, एक क्लास बना दी जिसके अंदर क्या है, नोटिफिकेशन का फीचर है, जिसमें क्या है, एक मेथड है जो क्या करता है, एक स्ट्रिंग लेता है और जिन को नोटिफिकेशन भेजना है उनको मेथड, वो मैसेज, वो स्ट्रिंग सेंड कर देता है, राइट. आफ्टर सम टाइम व्हाट द प्रॉब्लम यू गॉट, you find this very simple problem, that is you have to make the message, you have to send the message as an SMS, normal SMS, you have to send the message as a Facebook notification, and you have to go for the Slack notification as well, just like this. This is the one class that you have created initially. Then you have to provide the additional functionality for SMS notification, for the Facebook notification and for the Slack notification. So what you are going to do, I will use this as a base class. I will create these 3 concrete classes with the additional functionality. Of course, for SMS notification, what I need a SMS API, using which what I can do the same functionality. For Facebook notification, I need that API related to the Facebook, and I will use only that method which help us to send the notification to the Facebook user. Another one is the Slack notification. The same will applicable on the Slack notification as well. So you can find out, this is the structure, a very simple one. You are with the notifier, base decorator, of course, that you have created initially. Then you have created 3 concrete classes for SMS notification, Facebook notification and Slack notification, right? Okay, let's move a step, right? How this problem can be solved? This problem can be solved using the inheritance only, right? It's okay. Very simple inheritance, base classes, concrete classes, the problem is solved. But please go for this third point. You try to address this problem by creating special classes, or if I say you go for the second point, but then someone else reasonably asked you, why cannot you use several notification types at once? Let's go for the very simple example. मान लो आपके पास क्या है, एक इवेंट होने का एक सोर्स है और क्या है, एक एप्लीकेशन है जो क्या करती है, मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फॉर एग्जांपल स्लैक, फॉर एग्जांपल फेसबुक, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, इन तीनों पे क्या करता है, एक नोटिफिकेशन भेजता है. इवेंट सेम है और आपके मोबाइल में तीनों की एप्लीकेशंस है, तो आपके क्या होगा, 3 नोटिफिकेशन आएंगे. ठीक है, हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन है या जो आपका जो इवेंट है, दैट कैन बी टेलीकास्टेड, दैट कैन बी ब्रॉडकास्टेड ऑन मल्टीपल, दैट कैन बी 100 प्लेटफॉर्म्स, और आपके पास 100 के 100 हैं, देन व्हाट यू विल गेट, 100 notifications. Do you think it's a good practice? Another one can have 3 platform, another one can have 20 platform. The scenario is different. So what the case is? अरे भैया ये गलत है ना, इतने नोटिफिकेशन आएंगे तो हम क्या करेंगे, नहीं देखते.
और हाँ, थोड़े टाइम बाद क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को ब्लॉक कर देते हैं, या उस इवेंट को हम देखना ही नहीं चाहते, या जहाँ जहाँ से वो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं. इज दैट द सोल्यूशन? बीइंग अ डेवलपर, डू यू वांट दैट? Being a developer, I will get the job done in case I am increasing the user. But here what I am doing, I am blocking the user, or my users are blocking me. So the effective number of user will decrease. So the customer, the client will not make any payment to me, or it will decrease that payment. Right? So what the way is? You have to provide a way in which the application can be multiple, but you have to provide the solution so that your messages notification does not increase or does not create the Guinness record. That means it does not send the 100 notification. Event is one, but the 100 notifications are there based on each and every platform, right? So the solution to this can be the decorated design pattern, right? And for this we can make the use of inheritance, we can make the use of aggregation. In case we go for the inheritance, of course in the very simple case you have gone for the inheritance. जब हमें क्या करना था, एक बेस क्लास थी और एक एक मैसेज, एक एक नोटिफिकेशन भेजना था. लेकिन अगर हमें मल्टीपल नोटिफिकेशन भेजने हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम. ठीक है, आई होप यू कैन गो थ्रू दिस, राइट. दिस इज अ वेरी सिंपल द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. क्या कह रहा है ये, कि हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस या मैक्सिमम लैंग्वेजेस क्या करती हैं, सिंगल इनहेरिटेंस प्रोवाइड करती हैं. दैट मीन्स वन सब क्लास कैन हैव ओनली अ पेरेंट, ओनली अ सिंगल पेरेंट. ठीक है, तो अगर सिंगल पेरेंट वाली बात हो रही है तो हम एक ही फंक्शनलिटी दे सकते हैं एक क्लास में, और चाइल्ड क्लास में उसको इनहेरिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. ठीक है, तो जब हमारा जो केस आ रहा है वो मल्टीपल वाला है, दैट इज़ नॉट फिजिबल. सो वी हैव टू लर्न समथिंग न्यू. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न की बात करनी पड़ेगी, और उसको करने के लिए ऑफ कोर्स प्लीज वेट. बट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न? फर्स्ट थिंग, इट प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देन स्टैटिक इनहेरिटेंस. स्टैटिक इनहेरिटेंस मीन्स एक बेस क्लास एक चाइल्ड क्लास, तो एक बेसिक फंक्शनलिटी आ गई, जो बेस क्लास में थी वो चाइल्ड क्लास में आ गई. लेकिन ये क्या करता है, आपको थोड़ा ज़्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है. It enhances the extensibility of the object because changes are made by coding new classes. अब जो हमारी पुरानी क्लासेस हैं उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम एक नई कुछ नई क्लासेस बनाने, ऑफ कोर्स विद समथिंग न्यू जो आपको अभी आपको सीखना है, राइट. इट सिंप्लीफाइज द कोडिंग by allowing you to develop a series of functionality from targeted classes instead of coding all of the behavior into the objects. अब यहाँ पे समझने की बात है, क्या कह रहा है, allowing you to develop a series of functionality from targeted classes. अब targeted classes कौन सी हैं, वो क्लासेस जो फेसबुक से रिलेटेड है, फेसबुक API से रिलेटेड है, स्लैक API से रिलेटेड है, SMS API से. हमने तो क्या करना है, उन क्लासेस के मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे एंड डेफिनेटली आवर जॉब विल बी डन, राइट. बट करेंगे कैसे, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो फॉर द लर्निंग ऑफ द implementation of the decorated design pattern. Of course here I am going to make the use of the language that is Java, right. अब उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले let's say this is the base, this is the library that you are getting, that is a shape, is an interface having two concrete classes named circle and rectangle. I have used this in a number of example. For this, if I go for its implementation, then this is a very simple public interface shape. Everybody know how to create an interface in Eclipse. तो हमने बनाया जिसके अंदर एक फंक्शन हमने डिक्लेयर कर रहा है, दैट इज ड्रॉ. व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास क्या है, दो क्लासेस हैं, कॉन्क्रीट क्लासेस. फर्स्ट क्लास सर्कल इम्प्लीमेंट शेप, हमने क्या करा, ड्रॉ को ओवरराइड कर दिया, राइट, जिसके अंदर हमने कुछ भी लिखा है. देन वी आर विद अनदर क्लास अगेन दैट इम्प्लीमेंट्स शेप, तो उसमें भी हमने क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है. ठीक है, तो हमारा ये वाला काम हो गया. व्हाट नेक्स्ट, राइट, दिस वी हैव ऑलरेडी डन. What next? This one is the part that we have already done.
Next we move to this, that we have to create, right? For understanding purpose हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, शेप डेकोरेटर। हम इस क्लास की बात कर रहे हैं। अब इस क्लास में हमने करा क्या है, इस इंटरफेस को 2 बार एरो मार्क किया है, राइट? अब ये एरो मार्किंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू द UML डायग्राम, ठीक है, लेकिन मैं इसको समझा देता हूं कर क्या रहा है ये। दिस वन इज, जस्ट वेट, right? This one is inheritance. That means this is the child class of this interface. And what about this? This one is the aggregation. This class is making the use of this shape. So this point is clear. Having of course its own method. Some of them can be abstract, of course. Let's see what it is. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक शेप डेकोरेटर की बात कर रहे हैं, तो शेप डेकोरेटर में हमने क्या करा है, इम्प्लीमेंट शेप ऑफ कोर्स यूजिंग इनहेरिटेंस, और दूसरा क्या करा है, शेप इंटरफेस का या शेप क्लास का हमने एक डेकोरेटेड शेप क्या कर दिया, एक रेफरेंस बना दिया। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग दैट एज वेल, वी आर एग्रीगेशन, वी आर मेकिंग यूज ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल एज एग्रीगेशन। ठीक है, हमने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया कि हम सेम क्लास का यूज इनहेरिटेंस के लिए भी कर रहे हैं और एग्रीगेशन के लिए भी कर रहे हैं। और अगर मैं ये बात बोलूं कि डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न में दिस इज समथिंग विच वी हैव नॉट डन सो फार, अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब अगर हमें ये करना है तो उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 चीजें हैं। वन इज ड्रॉ, कौन है जो हमारे पास शेप इंटरफेस में डिफाइन किया हुआ है, उसकी फंक्शनलिटी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हमने क्या करा है, उसको वहां पे डिक्लेयर था, यहाँ पे हमने उसको डिफाइन कर दिया। एंड व्हाट एल्स, वी हैव क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टर नेम शेप डेकोरेटर फ्रॉम द सेम क्लास, जिसका पैरामीटर जिसमें हमने पास किए हैं शेप की तरह के, राइट? और क्या करा है, वी हैव यूज्ड दिस टू इनिशियलाइज अ शेप डेकोरेटेड शेप, right? I'm not going for the detail of this keyword, right? For this you can check out my some other video. ठीक है, तो हमने ये सिंपल सा बनाया। तो हमारे पास अगर हम एक बात बोलें कि भैया हुआ क्या है, ये वाली क्लास को हमने स्ट्रक्चर दे दिया, राइट? ये इंटरफेस बन गया, ये 2 क्लासेस बन गई हैं, प्लस ये एक शेप डेकोरेटर नाम की एक और क्लास बन गई है। व्हाट इट्स जॉब इज टू प्रोवाइड द इंटरफेस। रीजन बीइंग, ये क्लास किस तरह की है जो आपने बनाई है, ये किस तरह की क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास शेप डेकोरेटर, ठीक है, जिसको आपने क्या करा है, एक कॉन्क्रीट क्लास बनाई है। आप इसको नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। व्हाट एल्स यू हैव डन, you have created another class by the name red shape decorator. Let's say what its job is. ठीक है, इस रेड शेप डेकोरेटर में हमने करा गया है, दिस इज पब्लिक क्लास रेड शेप डेकोरेटर एक्सटेंड शेप डेकोरेटर। ये जो अभी इससे पहले वाली क्लास थी उसको एक्सटेंड कर रही है। और इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर है, अगेन शेप क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, और क्या कर रहा है, ये इसका यूज क्या कर रहा है, इट इज सेंडिंग इट टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास यूजिंग सुपर। ऑफ कोर्स इस सुपर को भी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, इसके लिए भी आप लोग किसी और वीडियो को चेक कर सकते हैं मेरी, ठीक है। और उसके अलावा क्या किया आपने, दैट मीन्स दिस इज द कंस्ट्रक्टर। उसके बाद आपने क्या करा, एक ड्रॉ फंक्शन ओवरराइड की है। कहां से आ रहा है, शेप डेकोरेटर से। शेप डेकोरेटर में कहां था, राइट? तो आपने क्या करा, इसको रीडिफाइन किया है। तो यू आर ओवरराइडिंग वन फंक्शन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, प्लस यू हैव क्रिएटेड वन मोर फंक्शन दैट इज प्राइवेट इन नेचर, जिसका नाम क्या है, सेट रेड बॉर्डर। और किसके ऊपर करना है, जो भी आपकी शेप आएगी, जो भी आपका शेप क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा। अब कौन सी क्लास का आएगा, लाइन का आएगा, सॉरी लाइन का नहीं, रेक्टेंगल का आएगा या सर्कल का आएगा, राइट? रेक्टेंगल या सर्कल, हमारी ये 2 क्लासेस चल रही हैं इसमें। तो जिसके ऊपर भी है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं। दिस वन इज क्लियर, दिस वन इज क्लियर, राइट? अगला काम क्या है, मेन, नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, रीजन बीइंग एवरीबॉडी नोज दिस,
इसमें क्या किया गया हो, इन क्लासेस का यूज किया गया हो। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर हमने क्या करा है, शेप इंटरफेस का एक रेफरेंस क्रिएट किया है बाय द नेम सर्कल। उसके बाद उसको पकड़ा दिया है उसकी एक कॉन्क्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट, किस क्लास का, सर्कल क्लास का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूं उसको समझाने के लिए, ठीक है, तो मैंने यहां पे एक सर्कल बनाया और फिर उस सर्कल डॉट ड्रॉ कर लिया, दैट मीन्स सर्कल डॉट ड्रॉ फंक्शन कॉल कर लिया। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स comment this one, right? Now what your expectation is, what do you feel the result will be? This will give us the result related to the circle only, that is circle with normal border. There is no statement related to the circle, sorry, there is no statement related to the border, there is no statement related to the color. It is just giving us the result based on the class this one. ठीक है, अगर इतना क्लियर हो रहा है तो हम और आगे बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम इसको डिलीट कर देते हैं और फिर हमने क्या करा है, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट बनाया बाय द नेम रेड सर्कल ऑफ द शेप इंटरफेस इटसेल्फ। ठीक है, और फिर क्या करा, रेड शेप डेकोरेटर क्लास के कंस्ट्रक्टर से जो क्या करता है, विच अगेन नीड द ऑब्जेक्ट ऑफ द शेप इंटरफेस इटसेल्फ। तो हमने क्या करा, एक सर्कल की तरह का एनोनिमस ऑब्जेक्ट पास ऑन कर दिया, सो दैट दिस रेड शेप डेकोरेटर इज क्रिएटेड। ऑफ कोर्स इसकी बेस क्लास भी शेप है, तो इसलिए हमने यहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा, भैया दिखा दे क्या बनाया, रिजल्ट क्या बनाया, और उसके लिए हमने क्या करा, इसको एग्जीक्यूट कर लिया। व्हाट वी आर गेटिंग, ये रिजल्ट पहले से आ रहा था, अब क्या आ रहा है, सर्कल ऑफ रेड बॉर्डर, वो कहां से आया, ये वाली स्टेटमेंट। उसके बाद रेड सर्कल डॉट ड्रॉ, उसने क्या करा, सर्कल ड्रा, ये कहां से आया, बेस क्लास से। किसके अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, हमारे पास क्या यूज हुआ है, रेड शेप डेकोरेटर। तो रेड शेप डेकोरेटर इज दिस। इस क्लास में हमने क्या करा है, डेकोरेटेड शेप, डेकोरेटेड कौन है, डेकोरेटेड शेप कौन है, सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट। तो सर्कल डॉट ड्रॉ कॉल करेगा और उसके बाद क्या हुआ, सेट रेड बॉर्डर, जो सर्कल के साथ रेड, दिस विल बी द रिजल्ट। ठीक है, इसको दोबारा से दिखाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं, दिस वन। ठीक है, ये हमारा आया सर्कल क्लास से और ये आया हमारा रेड शेप डेकोरेटर से। ठीक है, नाउ लेट्स go for the modification, that is shape red circle, sorry rectangle, and then we have made the use of red shape decorator itself। लेकिन इसको पास सर्कल नहीं किया, अभी हमने क्या कर दिया, रेक्टेंगल पास कर दिया। अब लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट इट गिव्स। ठीक है, ऑफ कोर्स रिजल्ट विल बी दिस ओनली। अब मैंने क्या करा है, मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर किया था, रियल प्रोजेक्ट की बात करी थी, जिसमें SMS नोटिफिकेशन, फेसबुक नोटिफिकेशन, स्लैक नोटिफिकेशन, इनकी बात करी थी। इन तीनों को अलग अलग आप कर पा रहे थे। बेस क्लास थी नोटिफिकेशन और तीनों के लिए हमने चाइल्ड क्लासेस बनाई और क्या करा, उनकी API यूज़ करके काम कर लिया। लेकिन अब हमारी बात क्या है, अरे भैया हमें एक काम नहीं करना, हमें क्या करना है, मल्टीपल काम करने हैं। ठीक है, अब मल्टीपल कौन है, या तो सर्कल के साथ हमें क्या करना है, कलर जोड़ना है, या हमें रेक्टेंगल के साथ कलर जोड़ना है।
वी कैन गो फॉर अदर कॉम्बिनेशंस एज वेल एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन गिव द नोटिफिकेशन एज वेल। अगर हम नोटिफायर वाले में जाते हैं तो ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो फॉर द डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न। और डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न की अगर हम बोले आत्मा है तो वो कौन है, वो है ये, ठीक है। दिस इज क्रिएटिंग द डेकोरेटर फॉर यू एंड दिस इज द एडिशनल डेकोरेटर फॉर यू, जिसको आपने क्या करा, यूज करा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।